My 10th I passed from ICSE in at Hoshiarpur, St. Joseph's Convent. Thereafter, I moved to Chandigarh for IIT preparation, but unfortunately could not clear that, and landed up unwillingly at UIT. That is what I had at that point in time. But gradually, I fell in love with this place, and whatever this place has given me, I cannot repay it back. Because Chandigarh itself is such a city wherein you can model yourself, you can chisel yourself, you can create anything you want to be out of yourself. Okay, so it is a wonderful opportunity for all of you. So I joined UIT in 2011 and I passed out in 2015. And after 2015, initially I worked in State Bank of India as a probationer for around 6 months. And I had already given my exam for UPSC in the month of August, right? The process started in August 2015, and the result came on 10th of May 2016. So I gave up my job at SBI and then I joined in Indian Revenue Service. So first of all, you all need to be very clear with your vision that yes, this is the thing I want to do. I want to clear it and then let the journey begin. Fine. It shouldn't be half-hearted conviction that okay, agar ye ho gaya to bhi theek hai, nahi to kuch aur kar lenge, right? So make sure that you give at least 1 or 2 years. I believe that is an ample amount of time to get a hold of this exam. So 1 or 2 years of your college life or thereafter 1 year should be dedicated to UPSC preparation. So that's the first thing. So how I began was, so my dad was working as SDO in PWD department, Punjab. So when he used to interact with people higher above, so those who are in group A, he would obviously say that there is nothing lacking in me also, wherein I cannot clear this exam. It was just because of the lack of opportunity for him or lack of knowledge, you may say, about the exam that he did not appear for it. So he motivated me in that in this field that you try it once. If you find it okay, then well and good. If you don't find it okay, then you can do whatever you wish to. Okay, wonderful question. देखिए इसमें क्या करता था ना, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो न्यूज़पेपर आप पढ़ें रेगुलरली, इट विल ऑटोमेटिकली आपकी चीजें ऐड होती जाएंगी. इट इज लाइक वाटरिंग द प्लांट डेली. जब आप डेली पानी उसको देते रहेंगे ना, वो खुद ब खुद ग्रो करना स्टार्ट करेगा. सेकेंड थिंग आई यूज्ड टू डू इज वॉच दिस. राज्यसभा टीवी में शाम को आता है द बिग पिक्चर एंड देश देशांतर. ये इतने अच्छे शोज हैं, इससे आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में भी पता लगेगा, बिकॉज वहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटर आते हैं जो चीजों के ऊपर बात करते हैं, एंड आपको डिफरेंट एंगल्स भी पता लगेंगे. उससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी जो आप कर रहे हो वो कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं, राइट? क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में कोई चीज पढ़ी होगी, उसके बारे में सोचा होगा. जब आप शाम को देश देशांतर देखेंगे तो उस पूरे वीक में वो क्या करेंगे, वो दोबारा उस चीज को वो कोई ना कोई टॉपिक टच कर ही लेंगे जो आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में या जिसके बारे में आपने सोचा होगा. देन आप देखेंगे वो डिफरेंट एंगल्स टच करेंगे, तो आप देखेंगे कि यार ये वाला एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं, ये भी आ सकता है इस एंगल में, राइट? तो दैट विल क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू योर प्रिपरेशन. स्टडी प्लान ऐसे बनाएं आप, सिर्फ बुक्स में डोंट गेट लॉस्ट, ठीक है? डोंट गेट लॉस्ट इन बुक्स. दैट इज माय सजेशन टू यू गाइस. रीड मिनिमम थिंग्स बट रीड देम अगेन एंड अगेन, ताकि आप जो है उस चीज पे मास्टरी हो जाए आपकी. ओके एक ना पंजाबी में कहावत है, मेरे मदर हमेशा कहते थे, वो कहते हैं कि कड़ा ना भर के डुलता है. बाय दैट व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स that if you are full within yourself, right, if you have enriched yourself, then it will automatically flow out of you, right? So जब भी आप इंटरव्यू देखिए, दो तरह के इंटरव्यू होंगे. अब आपने इसमें दो चीजें लिखी है, एक है यूपीएससी की इंटरव्यू, एक है आपकी प्लेसमेंट की इंटरव्यू. यूपीएससी की इंटरव्यू दे आर सीइंग यू एज अ होल, एज अ पर्सनैलिटी. वाई? बिकॉज उन्होंने बाकी सारी चीजें टेस्ट कर ली हैं, ठीक है? सो दे आर लुकिंग एट यू as a human only, as a personality, that how you will look while you are there sitting on the chair. जो कि आपकी कॉलेज प्लेसमेंट वाली इंटरव्यू है वो डिफरेंट टाइप की इंटरव्यू हो सकती है ना. एक होती है टेक्निकल इंटरव्यू, एक होती है एचआर इंटरव्यू. एचआर इंटरव्यू एंड टेक्निकल इंटरव्यू, इसमें टेक्निकल इंटरव्यू में वो देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज यू हैव, हाउ ईगर आर यू टू लर्न थिंग्स एंड ग्रो विद इन द कंपनी. एंड एचआर इंटरव्यू में ये देखेंगे कि इज दिस पर्सन गोइंग टू स्टे विद अस, ठीक है? सो
इसके लिए दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आप प्रिपेयर करोगे, लेकिन जस्ट जैसे मैंने कहा था यूपीएससी की प्रेपरेशन में क्या करोगे, आप तैयारी मेंस की करोगे, राइट, लेकिन इंटरव्यू से पहले, लेकिन ये प्रीलिम से पहले आप फोकस अपना प्रीलिम्स के ऊपर शिफ्ट कर लोगे 1-2 महीने। तो सिमिलरली इन दोनों इंटरव्यू में भी यही होगा। तो आप अच्छे इंसान बने, ठीक है, अपने आप को ग्रो करें, स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप अगर कोई कर सकते हो तो स्टार्ट फेसिंग योर फियर्स। पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं देखता हूँ कि मेजरली लोग नहीं कर पाते। दैट इज वन काइंड ऑफ फियर विच यू नीड टू फेस। सो पब्लिक स्पीकिंग करने की कोशिश करें जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड देन वंस यू बिकम अ होलसम पर्सनैलिटी, तो जैसे कि कोई भी आपकी इंटरव्यू आए, मान लीजिए कोई टेक्निकल इंटरव्यू आ रही है आपकी प्लेसमेंट की, तो अपना फोकस उस तरफ शिफ्ट कर दें फॉर दैट टाइम बिंग, ठीक है। जैसे यूपीएससी की इंटरव्यू आए तो अपना यूपीएससी की तरफ फोकस शिफ्ट कर दें। वो आपको सटलिटी ना उस चीज की पता लगती जाएगी जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। What were the skills that helped you sail through the exam? 2 skills जो आपको सेल थ्रू करने के लिए मस्ट हैं। फर्स्ट इज रीडिंग, ओके, यू रीड, एंड सेकंड इज यू थिंक, ओके। सो रीडिंग करें जितना ज्यादा। तो मेरा ये, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ यूपीएससी की रीडिंग ना करें, आप और भी चीजें, जो भी चीजें आपको इंटरेस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल आप इवन इफ यू वॉच मूवीज, दैट इज आल्सो गुड, दैट इज सम काइंड ऑफ एन इनपुट टू यू। लेकिन मूवी को जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, रीड, एंड जो कुछ भी आप गैदर कर सकते हो वो करें। सेकेंड थिंग, थिंक अबाउट इट। थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ना जब भी कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ना, तो ऐसा मत कीजिए कि आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया एंड देन यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। वंस यू हैव रेड द आर्टिकल, मान लीजिए आपको 5 मिनट लगे एक आर्टिकल को पढ़ने में या 10 मिनट लग गए, देन टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट दैट आर्टिकल फॉर 5-10 मिनट्स। देखिएगा, दिस विल बी वेरी हार्ड टू डू, ओके। योर माइंड कॉन्स्टेंटली वांट्स न्यू थिंग्स, तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर सोचेंगे। नो, टेक अ पॉज एंड स्टार्ट थिंकिंग। अपनी जिंदगी में भी आप ये चीज इंप्लीमेंट कीजिएगा, डोंट रश, टेक अ पॉज एंड थिंक। तो अपने टाइम बनाइए थोड़ा बहुत जिंदगी में, वैसे भी शाम को, सुबह, whenever you get time, at least for 5 minutes, 10 minutes, think about your life, think about yourself, where you are going, think about, is this really the line which you are pursuing is correct for you or not। देखना, आप एक ऐसी सेल्फ डिस्कवरी आपकी इंटरनली स्टार्ट होगी कि आपकी जिंदगी की बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके। बी दैट बी योर करियर, बी दैट बी योर रिलेशनशिप्स, whatever that may be, okay। if you just start thinking, give time to yourself, right? So these are the 2 skills which really helped me, okay। Very important question, and I think it should be addressed। देखिए, बैकअप ऑप्शन में क्या रहता है ना, एक I had seen some kind of movie, शायद परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में है। In that movie, Will Smith says, if you have a plan B, then plan A will never work। तो ये मुझे स्टेटमेंट उस टाइम बड़ी हार्ड हिटिंग लगती थी कि यस यार, if you have a plan B, then plan A will never work। What does this mean? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी बैकअप ऑप्शन है which you feel good about, right, then you will not put your 100% in plan A, okay। then you will always say कि अरे कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो ये तो ऑप्शन है ही, okay। तो 2 तरह के इंसान होते हैं, जो एक तो अपना जो है इस चीज में कमिट कर देते हैं कि ओके, इफ आई हैव नथिंग एल्स, आई एम गोइंग टू डू दिस ओनली, इसके अलावा मुझे और कुछ करना ही नहीं है। दूसरी तरह के बंदे ये होते हैं जो हर चीज को थोड़ा 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 कर लेते हैं, लेकिन फिर वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा ही सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो जॉब में भी अपना थोड़ा सा ही अच्छे होंगे, यूपीएससी में भी वो प्रीलिम्स ही क्लियर कर पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, बाकी कोई और एग्जाम भी देंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर दी। सो ये पूरी गेम है कंसंट्रेशन की, जिस चीज पे आप कंसंट्रेट करेंगे उस चीज में आपको सक्सेस मिल जाएगी जिंदगी में, राइट। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने क्या किया था, आई गेव माई सेल्फ 3 years, 3 attempts, दैट्स इट। मैंने ये कहा था कि 3 साल के लिए मैं इस चीज को डेडिकेटेड लगाऊंगा, देन 1 2 3 साल मैंने यहाँ पे लगाए, तो बाय 25 आई नीड टू क्लियर दिस एग्जाम। अगर मेरा एग्जाम यहाँ पे नहीं क्लियर होता, देन आई विल परस्यू माई टेक्निकल करियर, बिकॉज आई रियली एंजॉय IT, कोडिंग एंड एवरीथिंग। तो आप अपना प्लान बनाएं इसी तरीके से। मेरा प्लान था फॉर 3 attempts, लकीली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप अपना प्लान बनाएं, व्हाटएवर
amount of time you wish to give yourself आप दें, and अगर वो नहीं काम करता, then you shift to your alternative. And I would also like to add that जब हम कॉलेज में हुआ करते थे ना, तो we used to think that why our alumni is not interacting and everything, and थोड़ा सा उस टाइम में हम यही कहते थे कि वो एलुमनाई अफेयर्स कमेटी काम नहीं करती, राइट? पर मैंने वही चीज मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जिंदगी में होता क्या है, यू शुड नेवर पॉइंट फिंगर्स एट समबडी एंड यू शुड क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, ठीक है? तो मुझे अब ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है दैट यू गाइज आर टेकिंग अप दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू गाइज आर ऑर्गेनाइजिंग सच वेबिनार्स. These will be so helpful. I am certainly sure कि जो different domains से बाकी भी लोग आएंगे, that will be adding on so much to your to our family as UIT students, right? So my best wishes to everyone. Keep continuing this good work. Whenever I am going to be in Chandigarh, I'll definitely come and meet you guys once this COVID situation is normal. And please do take care of yourself, take care of your families, and always keep working hard.